कैरेक्टरिस्टिक रूट्स एंड वेक्टर्स। कैरेक्टरिस्टिक रूट्स क्या होते हैं और कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स क्या होते हैं? सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू प्रॉब्लम। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स and lambda is scalar and x equal to x1, x2, xn is a column vector, and if we consider the equation ax equal to lambda x which is equal to lambda ix, here I is the unit matrix of order n, and if we shift it to left hand side then we get a minus lambda ix equal to 0, where I is the unit vector of order n. Clearly x equal to O is a trivial solution of the equation for any value of lambda. O means zero vector in which all the elements are zero. तो यहाँ हमने कहा कि यदि A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, लैम्डा कोई स्केलर है और x कोई कॉलम वेक्टर है, तो हम अगर हम इक्वेशन Ax इक्वल टू लैम्डा x को सॉल्व करना चाहें तो x इक्वल टू जीरो वेक्टर तो हमेशा इसका सोल्यूशन होगा जो कि ट्रिवियल सोल्यूशन होगा। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन है कि अगर किसी भी स्केलर लैम्डा के लिए कोई नॉन जीरो वेक्टर x भी हम ऐसा निकाल सकें ताकि इस इक्वेशन का सोल्यूशन निकल पाए। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस whether there exists a scalar lambda and a non-zero vector x which simultaneously satisfy the equation. This problem is known as characteristic value problem. So in characteristic value problem, our problem is to find the scalar lambda as well as non-zero vector x which satisfy the equation ax equal to lambda x. In matrix form, the characteristic value problem can be written as a equal to a11, a12, a1n, a21, a22, a2n, an1, an2, ann, and x we write it as column vector x1, x2, xn, lambda into I. I is the identity matrix, and if we multiply it by lambda, we get lambda 0, 0, 0, lambda 0, 0, 0, lambda, and x is again a column vector. So in matrix form, characteristic value problem may be written as like this. And if we shift right hand side to left hand side, and we see that x1, x2, xn is common, and if we subtract the two matrices, we will get a11 minus lambda, a12, a1n, a21, a22 minus lambda, a2n, an1, an2, ann minus lambda, and x1, x2, xn is a characteristic vector which is equal to zero vector of the on the right hand side. So this matrix equation give rise to a system of n homogeneous linear equation in n unknowns. अगर हम इसको सॉल्व करके देखें, ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है a11 माइनस लैम्डा a12 an1, अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करें लेफ्ट हैंड साइड को और जीरोस के बराबर इक्वेट करें तो हमारे पास सिस्टम ऑफ n होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस आ जाती हैं, इज इक्वल टू a11 माइनस लैम्डा x1, a12 x2 प्लस a1n xn, और सेकंड में आएगी a11 x1, a12 माइनस लैम्डा x2 प्लस a1n xn, and a1n x1, a12 x2 plus a1n xn. The coefficient matrix of this system is a minus lambda I. Since x is a non-zero vector, then it must have non-trivial solution if the rank of coefficient matrix a minus lambda I is less than the number of variables n. इसका हमेशा नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होगा अगर रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स a माइनस कोएफिशिएंट मैट्रिक्स से हमारा मतलब a11 माइनस लैम्डा, a12, a1n, a11, a12 माइनस लैम्डा, a1n, a1n, a12, a1n माइनस लैम्डा। अगर ये जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है इसका रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल्स मींस x1, x2, xn से कम है, then in that case the system of equation has non-trivial solution. But this is possible only if the coefficient matrix is singular. Coefficient matrix singular means determinant of a minus lambda I is equal to 0. तो हमने कहा कि यदि n homogeneous linear equations का non-trivial solution तभी possible है
जबकि कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेंट मैट्रिक्स विच इज A माइनस लैम्डा I इज इक्वल टू 0। अब हम डिफाइन करते हैं कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ दिस सिस्टम ऑफ एन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन A माइनस लैम्डा I इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ऑफ A। जो अभी हमने कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को डिफाइन किया है, A11 माइनस लैम्डा A12 A1n A21 A22 माइनस लैम्डा A2n AN1 AN2 ANn माइनस लैम्डा, इस तरह की जो हमारे पास कोएफिशिएंट मैट्रिक्स आई है उसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। एंड दिस सिस्टम विल हैव नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन if and only if determinant of coefficient matrix A minus lambda I vanishes, यानी कि determinant A11 minus lambda A12 A1n A21 A22 minus lambda A2n AN1 AN2 minus lambda ANn is equal to 0। अगर हम इसको एक्सपैंड करेंगे, किसी भी डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करना हम सभी को पता है कि डिटर्मिनेंट को कैसे एक्सपैंड किया जाता है। अगर हम इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास एक पॉलिनोमियल आ जाएगा, उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी n, और जो ये पॉलिनोमियल हमारे पास आएगा इसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। So the extension of this determinant is the polynomial of degree n in lambda, which is called the characteristic value polynomial of the matrix A. So the determinant of the characteristic matrix A minus lambda I of the square matrix A is called the characteristic polynomial of A, and we denote it by phi lambda. Now, and if we equate it to 0, that is the equation of A minus lambda equal to 0, and then this is called the characteristic equation of the square matrix A. और अगर हम इस characteristic equation को solve करेंगे तो हमारे पास इसका कुछ solution आएगा, और जो इसका solution आएगा उसको हम कहते हैं characteristic roots या फिर latent roots या फिर proper roots या फिर eigen values. So the roots of the characteristic equation A minus lambda I equal to 0 of a square matrix A are called characteristic roots of a square matrix A. And the set of all these characteristic roots or latent roots, or we call it proper roots or eigenvalues, is called a spectrum. जो इसका set होता है characteristic roots का, इसको हम कहते हैं spectrum. So corresponding to a characteristic root lambda of a square matrix A, if there exists a non-zero vector x such that A minus lambda I equals x equal to 0, then x is called the characteristic vector. अगर हमारे पास कोई स्केलर कैरेक्टरिस्टिक रूट लैम्डा ऐसा आ जाए ताकि नॉन जीरो वेक्टर x के लिए A माइनस लैम्डा I x इक्वल टू 0 हो, तो हम कहेंगे कि x इज अ कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर और अ लेटेंट वेक्टर और अ प्रॉपर वेक्टर या फिर आइगन वेक्टर और इनवेरिएंट वेक्टर कॉरेस्पॉन्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक रूट लैम्डा। तो कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर को हमने अलग अलग नाम दे दिए हैं। हम इसको लेटेंट वेक्टर भी कह सकते हैं, प्रॉपर वेक्टर भी कह सकते हैं, आइगन वेक्टर भी कह सकते हैं और इनवेरिएंट वेक्टर भी कह सकते हैं। यहाँ मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज और कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर के बारे में। कॉरेस्पॉन्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर एक्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, देयर एग्जिस्ट ओनली वन एंड ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक रूट, whereas corresponding to characteristic root there exists more than one characteristic vector. कि एक कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक रूट होगा, हालांकि एक कैरेक्टरिस्टिक रूट के लिए हमारे पास एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स हो सकते हैं। या फिर हम इस तरह भी कह सकते हैं कि corresponding to one eigen value there may be infinitely many eigen vectors. And number 2, the product of characteristic roots of a square matrix of order n is equal to determinant of the matrix. अगर हम कैरेक्टरिस्टिक रूट को मल्टीप्लाई करें किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के जिसका कि ऑर्डर n है, तो उसकी जो प्रोडक्ट होगी वो हमारे पास डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के बराबर आ जाएगी। और फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, लैम्डा इज अ कैरेक्टरिस्टिक रूट इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो वेक्टर x such that x equal to lambda x. Next, the eigen vector of distinct eigen values are linearly independent. किसी भी आइगन वैल्यू के जो आइगन वेक्टर्स होंगे वो हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। द कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स आर आइदर 0 और 1। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का मतलब है कि अगर ए स्क्वायर हमारा ए के बराबर आ जाता है तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। और आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के अगर हम कैरेक्टरिस्टिक रूट निकालेंगे तो या तो वो 0 आएगा या तो वो 1 आएगा।
ये सब हम प्रूव करके दिखा सकते हैं. लेट A B be the two square matrices of order n, then the eigenroots of AB are exactly the same as eigenroots of BA. यानी कि AB और BA के eigenroots हमेशा बराबर होंगे. If lambda 1, lambda 2, lambda m are the eigenroots of non-singular matrix A, then lambda 1 inverse, lambda 2 inverse, lambda m inverse are the eigenroots of A inverse. अगर lambda 1 A का eigenroot है तो lambda 1 inverse A inverse का eigenroot होगा. अगर lambda 2 A का eigenroot है तो lambda 2 inverse A inverse का eigenroot होगा, and so on. Eigenroots and eigenvectors are real if real for any real symmetric matrix A. सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर रियल है तो उसके आइगन रूट्स और आइगन वेक्टर्स भी रियल ही होंगे. इफ B is equal to CA C inverse, where A, B, C are all matrices of order n, then A and B have the same eigen root. अगर हमारे पास कोई कंडीशन, हमारे पास C मैट्रिक्स आ जाती है ताकि B equal to CA inverse C हो, तो उस केस में A और B का आइगन रूट सेम होगा. The eigenroot of A and its transpose are same. अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें तो उसका जो आइगन रूट होगा वही आइगन रूट मैट्रिक्स A का भी होगा. अब हम एग्जांपल से दिखाना चाहेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक रूट और कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर कैसे निकालते हैं. हम एग्जांपल के तौर पर हमने लिया है, हमने एक मैट्रिक्स लिए A जिसमें कि मैट्रिक्स A है 8 -6 2 -6 7 -4 2 -4 3. तो हमारे पास ये मैट्रिक्स है. मैट्रिक्स में 3 रोज है, 3 कॉलम है. तो दिस A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके कैरेक्टरिस्टिक रूट्स कैसे निकालेंगे. तो कैरेक्टरिस्टिक रूट निकालने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ दिस मैट्रिक्स. किसी भी मैट्रिक्स A की हमने डिफाइन करी है कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है डिटर्मिनेंट A माइनस लैम्डा I इक्वल टू 0. तो अगर हम इसमें A माइनस लैम्डा I निकालेंगे, A माइनस लैम्डा I मतलब कि I इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सभी को पता है वो होती है 1 0 0 फर्स्ट रो, सेकंड रो 0 1 0, थर्ड रो 0 0 1. उसके अगर हर एलिमेंट को हम लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगी लैम्डा 0 0 0 लैम्डा 0 और 0 0 लैम्डा इज द थर्ड रो. तो अगर हम उसको A में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 माइनस लैम्डा -6 -0 2 -0 6 -0 7 माइनस लैम्डा -4 -0 2 -0 -4 -0 3 माइनस लैम्डा. तो उस तरह से हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाएगी 8 माइनस लैम्डा -6 2 -6 7 माइनस लैम्डा -4 2 -4 3 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0. एंड एवरीवन नोज हाउ टू ओपन द डिटर्मिनेंट. सभी को आता है कि किसी भी डिटर्मिनेंट को कैसे खोलते हैं. डिटर्मिनेंट को खोलने के लिए हम पहले फर्स्ट रो से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट रो से अगर हम स्टार्ट करेंगे 8 माइनस फर्स्ट एलिमेंट इज 8 माइनस लैम्डा, 8 माइनस लैम्डा इंटू हम पहली रो और पहले कॉलम को छोड़ देंगे, बाकी हमारे पास बच जाएगा 7 माइनस लैम्डा -4 3 माइनस लैम्डा. तो हमारे पास आ जाएगा 7 माइनस लैम्डा इंटू 3 माइनस लैम्डा -4 इंटू -4. सो 8 माइनस लैम्डा इंटू 7 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा -16 प्लस सेकेंड एलिमेंट -6 minus into -6 is +6, and if we delete first row and second column we are left with -6 -4 2 and 3 minus lambda. So we will multiply -6 by 3 minus lambda and -4 with 2. So we get 6 into 3 minus lambda into -6 plus 8 plus 2 into, we will delete first row and last column. So we are left with -6 into -4. -6 into -4 is 24 minus 2 into 7 minus lambda. -2 into 7 minus lambda. So this is equal to 0. So if we simplify this equation, we will get minus lambda cube plus 18 lambda square minus 45 lambda equal to 0. So if lambda is common here, इस इक्वेशन में लैम्डा हमारे पास कॉमन है. अगर हम लैम्डा कॉमन लेते हैं तो लैम्डा स्क्वायर -18 लैम्डा -45. And everyone knows how to factorize a quadratic equation. So if you factorize this quadratic,
lambda square minus 18 lambda minus 45, we will get lambda minus 3 into lambda minus 15. So being a quadratic, being cubic equation in lambda, this has 3 roots, which comes out to be lambda equal to 0, lambda equal to 3 and lambda equal to 15. हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट्स आ गए, 0, 3 और 15. So hence the characteristic roots are lambda 1 equal to 0, lambda 2 equal to 3 and lambda 3 equal to 15. So हमारे पास, so we have calculated the characteristic roots of the given matrix A. Now we will find the characteristic vector for this matrix. अब characteristic matrix निकालने के लिए हम हर characteristic root के corresponding एक characteristic vector निकालेंगे. तो पहला हमारा characteristic root है lambda 1 equal to 0. पहले हम lambda 1 equal to 0 के corresponding characteristic vector निकालेंगे. फिर lambda 2 equal to 3 के लिए corresponding characteristic vector निकालेंगे. फिर lambda 3 equal to 15 के corresponding characteristic vector निकालेंगे. So characteristic vector associated with lambda 1 equal to 0 is given by 8, minus 6, 2, minus 6, 7, 4, 2, minus 4, 3, x1, x2, x3, 0, 0, 0. यहाँ पर हमारे पास क्योंकि लैम्डा 1 की जगह 0 था, तो 8 माइनस लैम्डा हमारे पास 8 ही आ गया, 7 माइनस लैम्डा हमारे पास 7 ही आ गया और 3 माइनस लैम्डा हमारे पास 3 ही आ गया. अगर हम इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 8 इंटू x1 माइनस 6 इंटू x2 प्लस 2 इंटू x3 एंड विच इज इक्वल टू 0. हम सभी को पता है कि दो मैट्रिसेस तभी इक्वल होती हैं अगर उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं. We say that the two matrices are equal if their corresponding elements are equal. So in this way, first equation come out to be 8x1 minus 6x2 plus 2x3 equal to 0. पहली इक्वेशन आ गई. दूसरी इक्वेशन के लिए सेकंड रो को हम x1, x2, x3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस 6 इंटू x1, 7 इंटू x2, माइनस 4 इंटू x3. So this will come out to be minus 6x1 plus 7x2 minus 2x3 equal to 0, and in the last equation 2 into x1 minus 4 into x2 plus 3 into x3 equal to 0. So 2x1 minus 4x2 plus 3x3 equal to 0. Now we will simplify this, solve this equation. अब अगर हम इन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, पहली दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं या कोई भी दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएंगी x1 upon 1, x2 upon 2, x3 upon 2 equal to K1. K1 हमने कोई भी नंबर मान लिया है. Hence the required characteristic vector corresponding to characteristic vector lambda 1 equal to 0 is x1 equal to 1 को अगर K1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो K1 आ जाएगा. x2 equal to K को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2K1 आ गया और इन लास्ट x3 equal to 2K1. तो x आ गया हमारा K1, 2K2, 2K1. So this K1, 2K1, 2K1 is the characteristic vector corresponding to the characteristic root lambda 1 equal to 0. Now we will find the characteristic vector associated with lambda 2 equal to 3. अगर lambda 2 equal to 3 के corresponding निकालना चाहेंगे तो इस केस में हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आ जाएगी 8 माइनस लैम्डा यानी कि 8 माइनस 3 माइनस 6 2 माइनस 6 7 माइनस 3 माइनस 4 2 माइनस 4 3 माइनस 3 और हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर x1 x2 x3 और ये है 0 वेक्टर 0 0 0. तो ये आ गया माइनस 3 5 7 माइनस 3 4 एंड 3 माइनस 3 0. तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है 5 माइनस 6 minus 6 4 minus 4 2 minus 4 0 x1 x2 x3 equal to 0 0 0. If we multiply these two equations, we get 5x1 minus 6x2 plus 2x3 equal to 0, minus 6x1 plus 4x2 minus 4x3 equal to 0, 2x1 minus 4x2 equal to 0. On solving this equation, अगर हम इनको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x1 upon 2, x2 upon 1, x3 upon minus 2 equal to k2. ये हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करते हैं, कोई भी दो इक्वेशन लेके हम सॉल्व कर सकते हैं. The characteristic roots corresponding to lambda 2 equal to 3 comes out to be x equal to 2k2, k2 minus 2k2. क्योंकि यहाँ से हमारा x1 आ रहा है, फर्स्ट और लास्ट को ले तो 2k2, x2 हमारा आ रहा है 1 into k2 k2 और लास्ट 2 को लेंगे तो x3 आ रहा है minus 2k2. इसी तरह से हम कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर निकाल सकते हैं
फॉर द कैरेक्टरिस्टिक रूट लैम्डा 3 इक्वल टू 15। 15 के लिए अगर हम कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर निकालना चाहेंगे तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगी a माइनस लैम्डा आई होती है इक्वल टू नल वेक्टर, तो वो आ जाएगी 8 माइनस 15 माइनस 6 2 माइनस 6 7 माइनस 15 माइनस 4 2 माइनस 4 3 माइनस 15 और ये x1 x2 x3 इक्वल टू 0 0 0। इनको हम सॉल्व करेंगे तो आता है -7 7 माइनस 15 माइनस 6 और 3 माइनस 15 माइनस 12। बाकी के सारे एलिमेंट सेम रहेंगे, उनमें कोई चेंज नहीं होगा। और इन दोनों इक्वेशन को अगर हम मल्टीप्लाई करें, इस पहली वाली मैट्रिक्स को और दूसरी वाली मैट्रिक्स को, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा हमारे पास सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन आ जाएगा 7x1 प्लस 6x2 माइनस 2x3 इक्वल टू 0। इसमें मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया है, नहीं तो हमारे पास आता -7x1 माइनस 6x2 प्लस 2x3 इक्वल टू 0। अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करते तो आ जाएगा 7x1 प्लस 6x2 माइनस 2x3 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन हमारे पास आएगी -6x1 माइनस 8x2 माइनस 4x3 इक्वल टू 0। अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर दें, यानी -2 से डिवाइड कर दें, तो ये आ जाएगा 3x1 प्लस 4x2 प्लस 2x3 इक्वल टू 0। और लास्ट इक्वेशन हमारे पास आएगी 2x1 माइनस 4x2 माइनस 12x3 इक्वल टू 0। अगर 2 से डिवाइड कर दें इसको भी, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 2x1 माइनस 2x2 माइनस 6x3 इक्वल टू 0। तो हमारे पास 3 इक्वेशन आ गई होमोजेनियस इक्वेशन। इनको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x1 अपॉन 2 x2 अपॉन -2 x3 अपॉन 1 इक्वल टू k3। अगर हम फर्स्ट और लास्ट इक्वेशन को ले तो x1 आ जाएगा हमारे पास 2x3, सेकेंड और लास्ट को ले तो x2 आ जाएगा -2k3 और थर्ड और लास्ट को लेंगे तो x3 आ जाएगा 1 इंटू k3 जो कि k3 होगा। Hence the required characteristic vector corresponding to the characteristic root lambda 3 equal to 15 is 2k1 minus 2k3 equal to k3। तो इस एग्जाम्पल में हमने दिखाया कि कैरेक्टरिस्टिक रूट्स कैसे निकालते हैं। कैरेक्टरिस्टिक रूट्स निकालने के लिए हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन a माइनस लैम्डा आई को सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे हमारे केस में क्यूबिक इक्वेशन आ गए तो हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट्स होते हैं, तो हमारे पास 3 कैरेक्टरिस्टिक रूट्स आ गए 3। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर निकालने के लिए हमने एक एक करके एक एक रूट लेकर हमने कॉरेस्पॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर निकाल लिए। कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर निकालने के लिए a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इक्वल टू ओ को सिंप्लीफाई किया और जो हमारे पास सिस्टम ऑफ 3 होमोजेनियस इक्वेशन आ गई और उनको सॉल्व करने के बाद हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स आ गए। इसके बाद है केले-हैमिल्टन थ्योरम। केले-हैमिल्टन थ्योरम की स्टेटमेंट है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होती है वो हमेशा अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। हमको पता है कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0 का हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आ जाएगा a11 माइनस लैम्डा a12 a1n a21 a22 माइनस लैम्डा a2n an1 an2 an माइनस लैम्डा इक्वल टू नल वेक्टर। अगर हम इसको खोलेंगे तो उसको खोलने पर हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी और इक्वेशन आएगी हमारे पास लैम्डा में, और लैम्डा में जो इक्वेशन आएगी उसकी हमारे पास जो डिग्री होगी वो होगी n, बिकॉज दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n। तो हम इसको खोलने पर हमारे पास आ जाएगा -1 इंटू n लैम्डा n p1 लैम्डा n माइनस 1 प्लस p2 लैम्डा n माइनस 2 प्लस डैश 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 pn। और अगर हम इसको -1 की पावर n से डिवाइड कर दे तो हमारे पास इक्वेशन बच जाएगी लैम्डा 1 लैम्डा की पावर n प्लस p1 लैम्डा रेज्ड टू पावर n माइनस 1 प्लस p2 लैम्डा रेज्ड टू पावर n माइनस 2 प्लस डैश 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 pn इक्वल टू 0। Hence the elements of matrix A minus lambda I are of degree n in lambda. If we replace them by their cofactors, then we will get the equation of degree n minus 1 in lambda. अगर हम इसको इसके को-फैक्टर से रिप्लेस कर देते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी उसकी जो डिग्री होगी वो होगी n minus 1 लैम्डा में। So we may write adjoint A. adjoint A में हम क्या करते हैं, पहले को-फैक्टर्स निकालते हैं, को-फैक्टर्स निकालने के बाद उसका ट्रांसपोज लेते हैं, जो मैट्रिक्स आती है उसको हम कहते हैं adjoint।
सो एडजॉइंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई आ जाएगा b0 लैम्डा n माइनस 1 प्लस b1 लैम्डा n माइनस 2 प्लस bn माइनस 1, वेयर b0 b1 bn माइनस 1 आर ऑल स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n माइनस 1। यहाँ पर जितने भी बीज हमारे पास हैं ये सारे के सारे स्क्वायर मैट्रिसेस हैं और स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर है हमारे पास n माइनस 1 एंड हुज एलिमेंट्स आर फंक्शंस ऑफ AIJs। इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो AIJs के फंक्शन होंगे, यानी a11 a12 a1n a21 a22 a2n इन्हीं के फंक्शन होंगे, विच आर द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स A। तो अगर हम इसको लिखें, हमको पता है कि एडजॉइंट A होता है A इनवर्स, अगर हम निकालते हैं तो A इनवर्स हमारे पास होता है एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट A। और अगर हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के इससे हमारे पास इक्वेशन आ जाती है A इंटू एडजॉइंट A इक्वल टू डिटर्मिनेंट A। इसमें हमने मैट्रिक्स A की जगह हमने लिया A माइनस लैम्डा आई, तो अगर उसको हम A माइनस लैम्डा आई से रिप्लेस कर देते तो ये आ जाता है A माइनस लैम्डा आई एडजॉइंट A माइनस लैम्डा आई इक्वल टू डिटर्मिनेंट A माइनस लैम्डा आई, और इसको I से मल्टीप्लाई करा। I इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर एज दैट ऑफ A माइनस लैम्डा आई। तो A माइनस लैम्डा आई इंटू एडजॉइंट A माइनस लैम्डा आई इक्वल टू A माइनस लैम्डा आई इंटू आई। इसमें हर एक की अगर वैल्यू पुट करें, एडजॉइंट A माइनस लैम्डा आई की अगर वैल्यू पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा A माइनस लैम्डा आई एडजॉइंट A माइनस लैम्डा आई। अभी हमने पिछली स्लाइड में निकाला है, दैट इज इक्वल टू b0 लैम्डा n माइनस 1 b1 लैम्डा n माइनस 2 bn माइनस 1। तो अगर हम इसको पुट करें तो ये वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड ये हो गई, और राइट हैंड साइड में हमने अभी निकाला है माइनस 1 रेज़ पर n लैम्डा n p1 लैम्डा n माइनस 1 प्लस p2 लैम्डा n माइनस 2 प्लस pn i। अगर हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में दोनों a माइनस लैम्डा आई से इसको मल्टीप्लाई कर दें और राइट हैंड साइड में माइनस 1 से अंदर मल्टीप्लाई करें, और उसके बाद लैम्डा के लाइक पावर्स के कोएफिशिएंट को कंपेयर करें, देन वी विल गेट माइनस b0। इस केस में आ जाएगा लैम्डा n का कोएफिशिएंट माइनस b0, इस तरफ आ जाएगा लैम्डा n का कोएफिशिएंट माइनस 1 की पावर n। ये हो जाएगा माइनस b0 इक्वल टू माइनस 1 रेज़ पर n इंटू आई। सेकेंड केस में b की पावर लैम्डा की पावर n माइनस 1 का कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, अगर हम a को इससे मल्टीप्लाई करें तो पहला हमारा पास आ रहा है a इंटू b0, और अगर लैम्डा आई को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे b0 से b1 से तो ये आ जाएगा लैम्डा की पावर n माइनस 1 और b1। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड होगी a b0 माइनस b1, और राइट हैंड साइड हमारी देखिए लैम्डा की पावर n माइनस 1 का जो कोएफिशिएंट है वो है माइनस 1 की पावर n माइनस 1 इंटू p1 i। i से हमने मल्टीप्लाई किया, i हर उसमें है, तो हमारे पास ये आ गया a b0 माइनस b1 इक्वल टू माइनस 1 की पावर n p1 i। एंड सेकंड सिमिलरली इफ वी कंपेयर द कोएफिशिएंट ऑफ लैम्डा रेज़ पर n माइनस 2, देन वी विल गेट a b1 माइनस b2 इक्वल टू माइनस 1 रेज़ पर n p2 i। एंड द कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म इज a b n minus 1 equal to minus 1 raised per n pn I. So these are the terms which we get by comparing the coefficients of like powers of lambda on both sides of this equation. So if we multiply these equation by an, by matrices an minus 1, an minus 2 and I respectively, and adding all these equation we will get इन सबको, जैसे फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम an से मल्टीप्लाई करें, सेकेंड इक्वेशन को an माइनस 2 से मल्टीप्लाई करें, थर्ड इक्वेशन को a की पावर n माइनस 2 से मल्टीप्लाई करें, और लास्ट इक्वेशन को अगर हम i से मल्टीप्लाई करें और उसके बाद इन सारी इक्वेशंस को ऐड करें, तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड आएगी, लेफ्ट हैंड साइड के एलिमेंट आप देखेंगे कि सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे। जैसे फर्स्ट केस में अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को a की पावर n से मल्टीप्लाई करते हैं और सेकेंड को an माइनस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास ऊपर आ जाएगा an b0 और नीचे भी आ जाएगा an b0, तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। इसी तरह से जब हम इसको सेकेंड इक्वेशन को an माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और थर्ड को an माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन में जो सेकेंड टर्म आएगी वो आएगी an माइनस 1 b1 और नीचे भी हमारे पास आएगा फर्स्ट टर्म an माइनस 1 b1, तो ये दोनों टर्म कैंसिल, डायगनली सारी की सारी टर्म्स कैंसिल होती जाएंगी, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास 0 आ जाएगी।
और राइट हैंड साइड में अगर हम इनको फर्स्ट इक्वेशन को an से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेकंड को हम an-1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, थर्ड इक्वेशन को an-2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और लास्ट को हम i से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो राइट हैंड साइड आएगी उसमें आप देखेंगे -1 की पावर n तो सारे में कॉमन आ रहा है और बाद में हमारे पास बच गया an प्लस p1 an-1 प्लस p2 an-2 प्लस pn i। और अगर हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इंटरचेंज करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी an प्लस p1 an-1 प्लस p2 an-2 प्लस pn I equal to 0. Hence A satisfies its own characteristic equation. क्योंकि हमारे पास characteristic equation जो लास्ट में थी वो थी lambda n p1 lambda n-1 plus p2 lambda n-2 plus pn। अगर हम इसमें lambda की जगह A रख देते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन आती है वो आ जाती है an p1 an-1 an plus p2 an-2 plus pni equal to 0. So we have shown that A satisfies its own characteristic equation, which is a Cayley-Hamilton equation. Now we have one application of Cayley-Hamilton theorem. The Cayley-Hamilton theorem is used to find the inverse of the given matrix. Cayley-Hamilton theorem हमारे पास किसी भी स्टार मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए यूज की जाती है और ये हम दिखाएंगे कि कैसे यूज की जा सकती है। अगर हम एक कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ले लें जिसका कि ऑर्डर n है और हमको पता है कि केले-हैमिल्टन थ्योरम कहती है कि P0an प्लस P1 an-1 प्लस P2 an-2 प्लस Pni equal to 0 because according to Cayley-Hamilton theorem A satisfies characteristic equation. So A satisfies characteristic equation means we have replaced lambdas by A. If we multiply this equation by A inverse, we will get P0 an-1 plus P2 an-2 plus P2 an-3 plus Pn A inverse equal to 0 into A inverse. So in this case Pn A inverse, which is the last element, I have shifted left hand side to right hand side except the last element. So Pn A inverse is equal to P0 an-1 plus P1 an-2 plus P2 an-3 plus Pn-1 I. And if we divide both sides by Pn, we will get A inverse equal to -1 upon Pn plus P0 an-1 plus P1 an-2 plus P2 an-3 plus Pn-1 I. Thus the inverse of a matrix A may be evaluated by putting the values of an-1, an-2, an-3 etc. हमने देखा कि इस इक्वेशन में अगर हम an-1, an-2, an-3 और an की वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारे पास जो आ जाएगा A इनवर्स आ जाएगा, which is the inverse of the given matrix A. So we can say that Cayley-Hamilton theorem may be used to find the inverse of the given matrix. और कैसे निकालेंगे इनवर्स, इसके जो स्टेप्स है वो समराइज मैं कर देती हूँ कि फर्स्ट सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे, नंबर 2 उसके बाद हम जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगी उसमें हम A को लैम्डा को A से रिप्लेस कर देंगे, उसके बाद दोनों तरफ जो इक्वेशन आएगी उसको A इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे और अगर जब हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो A इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी। So how to calculate the inverse by characteristic equation? First we write the characteristic equation, substitute the value of A in lambda in place of lambda, multiply both sides by A inverse and then obtain A inverse by simplification. Now I am giving one example to demonstrate how to find the A inverse and how to verify the Cayley-Hamilton theorem numerically. तो हमारे पास ये एग्जाम्पल है, हमने मैट्रिक्स ली है 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2। ये मैट्रिक्स लिए, इस मैट्रिक्स में हमको दिखाना है कि ये मैट्रिक्स Cayley-Hamilton थ्योरम को सेटिस्फाई करती है और उसके बाद हमको A इनवर्स निकालना है। तो वी नो दैट द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज A माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लैम्डा I इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट A माइनस लैम्डा I, तो I हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर हम वही लेते हैं जो कि मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है।
इस केस में हमारे पास जो मैट्रिक्स हमको दी हुई है वो ऑर्डर 3 की दी हुई है, 3 रोज है और 3 कॉलम है, तो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी ऑर्डर 3 की लेंगे, यानी कि 1 0 0 फर्स्ट रो, 0 1 0 सेकंड रो, 0 0 1 थर्ड रो। अगर हम a माइनस लैम्डा आई निकालेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, वो आ जाएगा 2 माइनस लैम्डा माइनस 1 1 1 2 माइनस लैम्डा माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। उसके बाद अगर हम इस मैट्रिक्स को खोलेंगे, इस डिटर्मिनेंट को खोलेंगे, तो डिटर्मिनेंट को खोलने पर आ जाएगा 2 बाय फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास 2 माइनस लैम्डा है, 2 माइनस लैम्डा इंटू 2 माइनस लैम्डा माइनस 1 2 माइनस लैम्डा, जो हमारे पास आएगा 2 माइनस लैम्डा इंटू 2 माइनस लैम्डा, और आगे माइनस इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1। उसके बाद सेकेंड एलिमेंट माइनस माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, और उसके बाद माइनस 1 इंटू 2 माइनस लैम्डा माइनस 1 इंटू माइनस 1। लास्ट टर्म प्लस 1 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1 इंटू 2 माइनस लैम्डा। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे इक्वेशन आ जाएगी 6 माइनस लैम्डा प्लस 6 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा क्यूब माइनस 2 प्लस लैम्डा प्लस 1 1 माइनस 2 प्लस लैम्डा। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो लास्ट में हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी लैम्डा क्यूब माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 लैम्डा माइनस 4 इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो हमारे पास दी हुई मैट्रिक्स थी 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 1 1 माइनस 1 2। इस मैट्रिक्स के जो कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई लैम्डा क्यूब माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 लैम्डा माइनस 4 इक्वल टू 0। अब हम वेरीफाई करेंगे कि ये कैले हैमिल्टन थ्योरम को सैटिस्फाई करता है। कैले हैमिल्टन को सैटिस्फाई करने का मतलब है कि अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सैटिस्फाई करता है। तो उसके लिए हम अगर हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में लैम्डा को a से रिप्लेस करें तो हमारे पास आ जाएगा a क्यूब माइनस 6 a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4i इक्वल टू 0। अब हमको ये प्रूव करना है कि केले हैमिल्टन थ्योरम को सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब कि हमको प्रूव करना है कि a की वैल्यू अगर हम a की वैल्यू और a स्क्वायर की वैल्यू और a क्यूब की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन को करें तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में नल मैट्रिक्स आ जानी चाहिए ऑफ ऑर्डर 3। देखते हैं, अगर हम सबसे पहले a स्क्वायर निकालते हैं, a स्क्वायर का मतलब a इंटू a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी दोनों जगह। हमको पता है कि दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1 इंटू 1। इसी तरह से सेकेंड आ जाएगा 2 इंटू माइनस 1 माइनस 1 इंटू 2 1 इंटू माइनस 1। इसी तरह से सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो इनको सिंप्लीफाई करने पर आ जाएगा 6 माइनस से 5 5 माइनस 5 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6। a क्यूब होगा a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाल ली है, a की वैल्यू हमको पता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरे फर्स्ट एलिमेंट को पता है कैसे निकालते हैं। 6 इंटू 2 माइनस 5 इंटू माइनस 1 प्लस 5 इंटू 1। सिंप्लीफाई करेंगे तो 22 आ जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट माइनस 21 आ जाएगा। नेक्स्ट 21 माइनस 21 22 माइनस 21 21 माइनस 21 22। सभी को आता है कि मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। अगर हम a स्क्वायर a क्यूब और a की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट सब्स्टिट्यूट करते हैं, a क्यूब माइनस 6x प्लस 9a माइनस 4i इक्वल में देखते हैं क्या आता है। सब्स्टिट्यूट करने पर देखिए मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी है सारी की सारी वैल्यूज। ये a क्यूब की वैल्यू है माइनस 6 इंटू ये a स्क्वायर की वैल्यू प्लस 9 इंटू ये a की वैल्यू माइनस 4 इंटू i इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसमें हम सेकंड टर्म में हम सारे एलिमेंट्स को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, थर्ड में ना सारे एलिमेंट्स को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे और लास्ट में माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और अकॉर्डिंगली ऐड सब्ट्रैक्ट कर देंगे टर्म्स को। तो पहली टर्म आ जाएगी 22 माइनस 36 प्लस 18 माइनस 4। सेकेंड आ जाएगी माइनस 21 प्लस 30 माइनस 9 प्लस 0 और लास्ट फर्स्ट रो की लास्ट टर्म आ जाएगी 21 माइनस 30 प्लस 9 प्लस 0। इस तरह से सेकंड रो की टर्म्स आ जाएंगी, इसी तरह से थर्ड रो की टर्म्स आ जाएंगी और इनको हम ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम देखते हैं कि सारे के सारे एलिमेंट्स 0 आ गए। तो दिस इज अ नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। इसका मतलब है कि A satisfies its own characteristic equation, hence the given matrix satisfies केले-हैमिल्टन थ्योरम। हमने शो कर दिया। अब हम देखेंगे कि इसमें इसका इनवर्स कैसे निकालते हैं।
केले हैमिल्टन थ्योरम सेटिस्फाई हो गई। केले हैमिल्टन थ्योरम का एप्लीकेशन है कि अपने इसको हम किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए यूज कर सकते हैं। तो ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं, ए क्यू माइनस 6x प्लस 9a माइनस 4i इक्वल टू 0। 4i को छोड़ के बाकी के सारे के एलिमेंट्स को हम शिफ्ट कर देते हैं दूसरी तरफ, तो हमारे पास आ जाएगा 4i इक्वल टू ए क्यू माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9a। अब दोनों का हम प्री मल्टीप्लाई करते हैं ए इनवर्स से, तो ए 4 इंटू 4 से हमने डिवाइड कर दिया है और ए इनवर्स इंटू आई ये हो गया 1/4। ए क्यूब को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, ए स्क्वायर को ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई किया और ए को ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई किया। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई ए इनवर्स 1/4 ए स्क्वायर हो गया, ये ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर ए इनवर्स इंटू ए आई। So on putting the values of a square and a which we have already calculated, we get 1/4 6 minus 5 5 minus 5 6 minus 5 5 minus 5 6 a square की वैल्यू माइनस 1/4। ये सारी वैल्यूज पुट कर दी हमने। वैल्यूज को पुट करने के बाद इनको हर टर्म को यहाँ 1/4 तो सारे में कॉमन है, 1/4 कॉमन लेने के बाद सारे एलिमेंट 6 माइनस 12 प्लस 9 हमारा 3 आ गया। इस तरह से इनको सबको सिंपल ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया टर्म्स को और हमारे पास 1/4 से हमने हर टर्म को डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया 3/4 1/4 माइनस 1/4। इसी तरह से सेकंड रो और ये थर्ड रो, तो हमारे पास आ गया ए इनवर्स। तो हमने दिखाया कि केले हैमिल्टन थ्योरम कैन बी यूज्ड टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। We have some applications of eigenvalues and eigenvectors also in engineering, in geology, in image processing, etc. So I think these are beyond the scope of this lecture. That's all for today. So we have discussed about the characteristic root, characteristic vectors, how to find them, what are the applications, and the theorem related to it. This is all for today. Thank you.